So hello everyone. Today I will deal about the monkeypox or mpox. The disease is earlier known as monkeypox. Now WHO will begin using a new preferred term mpox as a synonyms for monkeypox. Both name will be used simultaneously for around 1 year while monkeypox is phased out. Regarding introduction, the disease is viral and of zoonotic origin. It has smallpox-like symptom but with less severity. Recognizing the global threat, WHO has declared it as public health emergency of international concern. First in July 2022, now again in 14th August 2024. Now regarding historical background, डिजीज़ सबसे पहले डिस्कवर्ड हुई थी मंकीज़ में जो रिसर्च पर्पजेज़ के लिए रखे हुए थे. देन इन ह्यूमन बींग्स फर्स्टली 1970 in Democratic Republic of Congo, a 9-year-old boy in the region where the smallpox had been eliminated. तो smallpox वहाँ eliminate हो गया था और smallpox जैसे symptom के साथ एक बच्चे को report किया गया था. Then since 1970 cases have been reported in 15 African countries and 2003 the first monkeypox outbreak outside Africa was reported in USA and was linked to connect with the infected pet Perry dogs. Now regarding the global scenario, earlier the disease is regarded to be confined to Africa only. Then a series of outbreak reported from the Europe in 2022. It was the first time that the chain of transmission were without known epidemiological link to the West or Central Africa. Then January 2022, monkeypox cases have been reported to WHO from 121 member states across the 6 WHO regions. As per authentic report of WHO fact sheets, as of 31st July 2024, a total of 1,02,997 laboratory confirmed cases and 186 probable cases were reported, that including also 223 deaths. As of July 2024, the number of monthly reported new cases has increased by 8.8% as compared to the previous month. Majority of the cases reported in the past month were mainly notified from the African region and other areas are also involved. As per Indian scenario, first case monkeypox was reported in Kollam district, Kerala in July 2022. Also in 27th March 2024. Now latest case has been verified as a travel related infection on 9th September 2024. Laboratory test has confirmed the presence of mpox virus of West African clade 2. अभी हम डिफरेंट क्लैड्स के बारे में इसमें स्टडी करेंगे. और एक सस्पेक्टेड केस केरला के मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट हुआ है विच हैज़ अ ट्रैवल हिस्ट्री फ्रॉम दुबई. Now regarding agent factor, agent is a double-stranded DNA virus which is enveloped and that belong to the genus Orthopox virus and family Poxviridae. It has distinct two clades. So two clades हैं. First is Central African Congo Basin clade. It is more virulent and transmissible. And second is West African clade. तो Central African clade को WHO ने clade 1 बोला है और West African clade को clade 2 नॉमिनेट किया है. ठीक है. फर्दर clade 2 is divided into subclades, clade 2A and clade 2B. Till recently, all sequences of the present global outbreak were associated with clade 2B. लेकिन 2024 में clade 1B अफ्रीका रीजन से रिपोर्ट हुआ है. डेथ भी हुई है इसकी वजह से. ठीक है. तो clade 1B क्या है? clade 1 का एक न्यू वेरिएंट है. तो clade 1 जो ओरिजिनली था वो clade 1A हो गया एंड नाउ जो सर्कुलेटेड है clade 1B है विच इज़ एंडेमिक टू अफ्रीकन कॉन्गो. द वायरस इज कंटिन्यूइंग टू इवॉल्व इंक्लूडिंग सेवरल स्मॉल चेंजेस इन जेनेटिक कोड, माइनर जीन वेरिएशन एंड a delete gene. Regarding host, natural reservoir is yet unknown. However, certain rodents and non-human primates are known to be naturally susceptible to infection to mpox virus. Incubation period 6 to 13 days, लेकिन it can range from
5 to 21 days. A person is not contagious during incubation period. इंक्यूबेशन में contagious नहीं है और अभी 21 डेज तक हम मॉनिटर करते हैं पेशेंट को. कम्युनिकेबिलिटी क्या है? 1 to 2 days बिफोर द रैश और जब तक कि स्कैब फॉर्मेशन नहीं होता और नई स्किन नहीं बन जाती. नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्लैड 1 जो है इट इज़ स्प्रेडिंग प्राइमरीली थ्रू द हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स एंड फ्रिक्वेंटली इन्फेक्ट्स चिल्ड्रन. क्लैड 2B जो कि प्रीवियसली ग्लोबल वार्निंग की तरह से उसको WHO ने अनाउंस किया था. इट स्प्रेड मेनली थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, वाइल द क्लैड 1B कॉजेज द सिमिलर इलनेस टू क्लैड 2B. दैट मीन्स कि दोनों क्लैड से सिमिलर हो रही हैं इलनेस, लेकिन क्लैड 1B इज़ कंसिडर्ड टू कैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग फास्टर एंड किलिंग मोर पीपल. तो अभी क्लैड 1 की स्प्रेड है. Regarding transmission, human to human transmission occurs through the large respiratory droplets, generally requiring a prolonged close contact, that is face to face. Prolonged close contact मतलब large droplets है तो दूर तक नहीं जाएंगी, ठीक है. दूर तक जाने वाले को airborne infection बोलते हैं. Through direct contact with body fluid or lesion material and indirect contact with lesion material through the contaminated clothing or linen. Transmission between sexual partner having skin to skin contact including sex and mouth to mouth or mouth to skin contact are among the risk factor. Vertical transmission is also possible. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस में जाएगा और न्यूबॉर्न में कैसे जाएगा? ड्यूरिंग और आफ्टर बर्थ थ्रू स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट. Studies have not found a clear link between mpox and water in pool, hot tub, splash pad. तो मंकी पॉक्स वायरस जो है वो वायरस वाटर में जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए वाटर में क्लोरीनेशन होता है उससे वो किल हो जाता है. कितना क्लोरीनेशन होना चाहिए? पीएच वैल्यू जो होनी चाहिए वाटर पूल्स जैसे में 7.2 to 7.8 के बीच में होना चाहिए. 7.2 7.8 से अगर ऊपर पीएच है तो क्लोरीन एक्टिवेट नहीं होती है. 7.2 से अगर कम है तो वो स्किन के लिए ठीक नहीं है, ठीक है. पीएच तो 7.2 to 7.8 के बीच में हमें पीएच रखनी है और क्लोरीन वैल्यू कितनी रखनी है वाटर में? प्री क्लोरीन 1 to 3 ppm. नाउ एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, पीपल विद लो और कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी आर एट बिगर रिस्क, ठीक है. कैसे फैलेगा? बाइट से, स्क्रैच से, ठीक है, स्मॉल मैमल्स के थ्रू, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स के थ्रू या थ्रू द बशमीट. बशमीट क्या होता है कि जो भी इट इज़ मेनली ऑब्टेन्ड बाय हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड बर्ड्स, कुछ भी हो सकता है. तो उनकी जब स्क्रीनिंग करते हैं इन्फेक्टेड एनिमल्स की या पार्शली कुक्ड मीट हम खाते हैं तब ह्यूमन टू एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं. क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पैट इंक्लूडिंग द पैटिंग, कडलिंग, हगिंग, किसिंग, लिकिंग एंड शेयरिंग स्लीपिंग स्पेसेस और फूड, इट में ऑल्सो ट्रांसमिट द डिजीज़. बच्चों में बेसिकली क्या है? इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, दे आर इम्यूनोलॉजिकली नेव, तो ज़्यादा चांसेस हैं डिजीज़ होने के और सीवियरिटी भी होती है बच्चों में. नाउ कम्स टू द केस डेफिनेशन. तो टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी रिपोर्टिंग करनी है तो एक जैसा केस होना चाहिए, स्टैंडर्ड केसेस होने चाहिए, डेफिनेशंस होनी चाहिए. तो सस्पेक्टेड केस की क्या डेफिनेशन है? अ पर्सन ऑफ एनी एज हैविंग हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल टू affected countries within last 21 days presenting with an unexpected acute rash and one or more of the following sign and symptom. 21 दिन की हिस्ट्री हो उस एरिया में, उसके बाद वो रैशेज़ के साथ, लिम्फेडिनोपैथी के साथ आ जाए, फीवर, हेडेक, बॉडी एक, प्रोफाउंड वीकनेस, कुछ भी हो रैशेज़ के साथ, तो हम उसको कहते हैं कि दैट इज़ सस्पेक्टेड केस. देन प्रोबेबल केस क्या है? अ पर्सन मीटिंग द केस डेफिनेशन फॉर अ सस्पेक्टेड केस. सस्पेक्टेड केस तो है लेकिन क्लिनिकली कंपैटिबल इलनेस और उसका एपिडेमियोलॉजिकल लिंक है कंफर्म केस के साथ. एपिडेमियोलॉजिकल लिंक कैसे हम देखेंगे कि वो हिस्ट्री दे रहा है फेस टू फेस एक्सपोजर की, हेल्थ केयर वर्कर है जिसने पीपी विदाउट अप्रोप्रिएट पीपी उसने उसका कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद स्किन टू स्किन इंक्लूडिंग द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट विद कंटेमिनेटेड मटीरियल सच एज क्लोथिंग, बेडिंग एंड यूटेंसिल और उसके साथ सिम्टम के साथ आ रहा है. कंफर्म केस जो लैब में कंफर्म हो गया, हम बेसिकली इसमें RT-PCR से कंफर्म करते हैं. ना सर्विलेंस स्ट्रैटेजीज़ क्या है हमारी? एम सर्विलेंस का क्या है हमारा? इस एम है कि हम जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करें केसेस को, क्लस्टर ऑफ इन्फेक्शन को, जिससे कि हम केसेस को आइसोलेट कर सकें, ट्रांसमिशन ना हो जिससे, है ना. प्रोवाइड ऑप्टिमल क्लिनिकल केयर उनको दे सके, क्योर हो जिससे फर्दर हमारी चेन ऑफ ट्रांसमिशन रुक जाए.
कॉन्टैक्ट्स को हम आइडेंटिफाई करें, प्रोटेक्ट करें फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को, और इफेक्टिवली कंट्रोल एंड टेक प्रिवेंटिव मेजर बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन। की स्टेक होल्डर्स कौन है सर्विलेंस में? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, IDSP, पॉइंट ऑफ एंट्रीज जैसे एयरपोर्ट्स हो गए, कोई भी पोर्ट्स हो गए, हॉस्पिटल्स में बेसिकली स्किन क्लिनिक हो गया, STD क्लिनिक हो गई, एंटीनेटल क्लिनिक है, पीडियाट्रिक OPDs हैं, और लैब नेटवर्क्स हैं, ठीक है। वहाँ ज़्यादा हमारी ये स्टेक होल्डर्स हैं हमारे सर्विलेंस के। एडवाइजरी डिफरेंट टाइम पे फॉलो की जाती हैं, ठीक है। सर्विलेंस आउटलाइन क्या है? इट इज़ यूज्ड ऑफ स्टैंडर्ड केस डेफिनेशन, ठीक है। जितने भी स्टेक होल्डर हैं हमें स्टैंडर्ड केस डेफिनेशन यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है, ठीक है। वही सस्पेक्टेड केस हर जगह से रिपोर्ट होगा, वही कंफर्म केस हर जगह से रिपोर्ट होगा। इवन अगर सिंगल केस भी आ रहा है एमपॉक्स का तो हम ये कहेंगे आउटब्रेक हो गया है, ठीक है, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट नहीं है डिजीज़। रिपोर्ट एनी सस्पेक्टेड केस इमीडिएटली टू द डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट, स्टेट सर्विलेंस यूनिट, सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट, और फाइनली वो क्या होता है DGHS, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे चला जाता है। उसके बाद हमने सैंपल कलेक्ट करने की भी गाइडलाइंस है, डेजिग्नेटेड लेबोरेटरी में हमने भेजनी है, ठीक है। नाउ कोर सर्विलेंस स्ट्रैटेजी क्या है? बेसिकली हमने 2 टाइप से सर्विलेंस करना है, हॉस्पिटल बेस्ड सर्विलेंस है टारगेटेड सर्विलेंस। इट इज़ नोन एज एक्टिव सर्विलेंस। पैसिव सर्विलेंस क्या होता है? जहाँ पेशेंट जाके खुद रिपोर्ट करता है कि मुझे सिम्टम आ गए। एक्टिव, हम एक्टिवली उसको ढूंढ रहे हैं केसेस को, ठीक है। तो हॉस्पिटल बेस में क्या है? हेल्थ फैसिलिटी बेस्ड सर्विलेंस में बेसिकली स्किन क्लिनिक हो गई, जैसे डर्मेटोलॉजिकल क्लिनिक हो गई, STD क्लिनिक्स हो गई, मेडिसिन पीडियाट्रिक OPD हो गई, इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो गए। टारगेटेड सर्विलेंस में ये कहाँ हम कैसे हम अचीव करेंगे? टारगेटेड इंटरवेंशन साइट जो नाको ने डिसाइड कर रखी है, जैसे MSM हो गया है, FSW पॉपुलेशंस हो गई, या मीजर सर्विलेंस में जो रैशेस के साथ डिजीज़ हम सर्विलेंस में डालते हैं, ठीक है। इनिशिएट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द सिम्टोमेटिक आफ्टर द डिटेक्शन ऑफ प्रोबेबल और कन्फर्म केस। रिपोर्टिंग कहाँ करनी है? रिपोर्टिंग हमने MOHFW पे स्पेसिफिक फॉर्मेट्स बने हुए हैं, सस्पेक्टेड केसेस को डिफरेंट लिंक दिए हुए हैं MOHFW में, तो वहाँ हमने रिपोर्ट करना है। नाउ क्लिनिकल फीचर, इट इज़ बेसिकली वायरल डिजीज़ है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। सिम्टम बेसिकली 2 to 4 वीक्स तक लास्ट करते हैं। सीवियर केसेस मोर कॉमनली बच्चों में होते हैं क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है, और वो डिपेंड किस पे करता है? एक्सटेंट ऑफ वायरस एक्सपोजर कितना है, पेशेंट की हेल्थ स्टेटस क्या है, नेचर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस क्या है। एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन भी है, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता कि कितने एक्सटेंट तक एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन है। एमपॉक्स डिजीज़ बेसिकली कैरेक्टराइज बाय, इसमें 3 फेजेस हो गए, इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोडॉर्म एंड रैशेस। तो प्रोडॉर्म में, इंक्यूबेशन पीरियड में कंटाजियस नहीं होता है पेशेंट, प्रोडॉर्म में सारे वायरल वाले सिम्टम्स आ जाते हैं। कंटाजियस होता है इस पीरियड में फीवर, चिल्स और स्वेट, सोर थ्रोट, कफ, हेडेक, मसल एक्स, एग्जॉशन। बेसिकली इसमें क्लासिकल फीचर है लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है। लिम्फेडिनोपैथी अर्ली स्टेज में ही आ जाती है, इवन और कोई सिम्टम नहीं आता, कई बार लिम्फेडिनोपैथी आ जाती है पेनफुल रैशेस के साथ, ठीक है। उसके बाद रैशेस, लेजन टिपिकली डेवलप साइमल्टेनियसली एंड इवोल्व टुगेदर ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट यूजुअली बिगिन विद इन द 1 to 3 days ऑफ द फीवर ऑनसेट, लास्टिंग अबाउट 2 to 4 weeks। डीप सीटेड रैशेज होते हैं, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं, और अम्ब्लिकेशन डेवलप हो जाता है। स्मॉल पॉक्स के भी सेम रैशेज होते हैं। लेजन आर ऑफन पेनफुल अंटिल हीलिंग फेज व्हेन दे बिकम ईची, क्रस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। पर्सन कंटेजियस होता है जब तक कि स्कैब फॉर्मेशन ना हो जाए और नीचे नई स्किन ना बन जाए। इवोल्यूशन ऑफ रैशेस कैसे होता है? स्लो इवोल्यूशन होता है। बेसिकली एनेंथम बनता है फर्स्ट लेजन ऑन द टंग और माउथ और ओरल म्यूकोजा, उसे एनेंथम बोलते हैं, ठीक है। मैक्यूल्स से स्टार्ट होता है, फेस पे स्टार्ट होता है, उसके बाद आर्म, लेग्स, पाम एंड सोल्स में चला जाता है, इसे सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। स्मॉल पॉक्स में भी सेम है, चिकन पॉक्स में सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन है, विद इन 24 hours ये स्प्रेड कर जाता है। रैश मैक्यूलर, पेपुलर, वेसिकुलर एंड पस्टुलर फेज के थ्रू होता है, ठीक है। एट एनी वन पॉइंट ऑफ द टाइम प्लियोमॉर्फिक फॉर्म कैन ऑल्सो बी सीन। प्लियोमॉर्फिक मतलब सारे टाइप के रैशेज हमें एक टाइम पे दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। क्लासिकल लेजन इज वेसिकुलो पस्टुलर। बेसिकली क्या होता है? फेस, पाम एंड सोल्स ये ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन भी हो सकती है, जेनाइटेलिया कंजक्टिवा भी होती है। जनरली स्किन रैशेज आर मोर अपरेंट ऑन द लिम्ब एंड फेस देन ऑन द ट्रंक, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन। चिकन पॉक्स में क्या होता है? ट्रंक पे ज़्यादा होते हैं, आर्म्स पे, एक्सट्रीमिटीज़ पे कम होती है, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन।
2022 का जो आउटब्रेक हुआ था उसमें मोस्टली केसेस क्या होते हैं, सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक में पकड़े गए थे, रिपोर्ट हुए थे, और यहाँ पे बेसिकली जेनाइटल्स में, एनस में, जेनाइटल्स में यहाँ पे रैशेस थे, और वो क्लैड 2B वायरस के थ्रू स्प्रेड हुए थे। ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं रैशेस के। ये मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल, पस्ट्यूल, स्कैब, मैक्यूल, स्किन सरफेस पे, ये मैंने काफ़ी डिटेल में चिकन पॉक्स वाले प्रेजेंटेशन में डिस्क्राइब किया हुआ है। लेजन हील कैसे होते हैं, हाइपर पिगमेंटेड भी हो सकता है, हाइपो पिगमेंटेड एट्रोफिक स्कार बन सकते हैं, पैची एलोपेशिया हो सकता है, हाइड्रोट्रोफिक स्किन स्कारिंग हो सकती है, कॉन्ट्रेक्चर डिफॉर्मिटी, फेशियल मसल फॉलोइंग हीलिंग, अल्सरेशन ऑफ फेशियल लेजन। स्मॉल पॉक्स में भी बहुत अच्छे खासे स्कार बनते हैं, डीप स्कार, इसमें भी ऐसे ही बनते हैं। द स्किन मैनिफेस्टेशन डिपेंड ऑन द वैक्सीनेशन स्टेज, एज, न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड एसोसिएटेड HIV स्टेटस। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, बेसिकली मेल न्यूट्रिशन, पैरासिटिक इन्फेक्शन, और दिस अगर हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन है तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बच्चों में ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। क्या क्या हो सकता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, सीवियर स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, डिहाइड्रेशन, निमोनिया, एनकेफ्लाइटिस, ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशन, स्कारिंग ऑफ स्किन लीजन। अब रैशेज़ हैं तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या आएगा, स्मॉल पॉक्स जैसे हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स हमारा इरेडिकेट हो चुका है। तो बेसिकली क्या है, चिकन पॉक्स, डिसैमिनेटेड हर्पीज जोस्टर, डिसैमिनेटेड हर्पीज सिम्प्लेक्स, मीजल्स, शैंक्रोइड, सेकेंडरी सिफिलिस, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, मोलस्कम कंटाजियसम एंड बफेलो पॉक्स। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस बेसिकली हमने स्पेसिमेन लेना है स्किन से, स्किन फ्लूइड, कोई भी बॉडी फ्लूइड ले सकते हैं, बायोप्सी ले सकते हैं, रैशेस से ले सकते हैं, है ना, ओरोफेरेंजियल स्वैब भी ले सकते हैं। क्लिनिकल स्पेसिमेन बेसिकली हमने ट्रांसपोर्ट करना है, NCDC, NIV पुणे, VRDL लैब्स हैं, इसके लिए बेसिकली 35 लैब को इक्विप्ड किया गया है और 22 लैब्स करेंटली रेडी हैं। क्या एल्गोरिदम है, क्लिनिकल स्पेसिमेन हमने पहले क्या करना है, PCR, RT-PCR के थ्रू हमने ऑर्थोपॉक्स वायरस को एक्सक्लूड करना है। अगर ऑर्थोपॉक्स वायरस ही एक्सक्लूड हो गया तो दैट मीन्स एमपॉक्स नहीं है। ऑर्थोपॉक्स वायरस है तो उसके बाद हम एमपॉक्स वायरस को एक्सक्लूड करेंगे। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट बेसिकली ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है, वायरल डिजीज़ है। प्रिंसिपल मैनेजमेंट का क्या है, पेशेंट को आइसोलेट कर दो, कॉम्प्रोमाइज स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, प्रोटेक्शन करनी है हमने, उसको वाटर ज़्यादा इंटेक करना है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है, सिम्टम एलिवेशन, पेन है, फीवर है, इनके लिए ट्रीट करना है। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे, और कॉम्प्लिकेशन अगर कोई है तो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। पेशेंट की आइसोलेशन कैसे करनी है, जैसे कोविड में था सेपरेट रूम में, या तो हॉस्पिटल में करना है या घर पे होम आइसोलेशन करना है तो सेपरेट रूम में करेंगे। ट्रिपल लेयर मास्क लगाएगा पेशेंट। स्किन लेजन शुड बी कवर्ड, लॉन्ग स्लीव की हमने शर्ट और पैंट्स पहनना है जिससे कि कॉन्टैक्ट्स दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट ना हो। आइसोलेशन टू बी कंटिन्यूड अंटिल ऑल लेजन हैव रिजॉल्व एंड स्कैब हैव कम्प्लीटली फॉलन ऑफ एंड अ फ्रेश लेयर ऑफ इंटैक्ट स्किन ट्रांसफॉर्म। केस फर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें तो क्लैड 1 में सिमिलर इलनेस होती है क्लैड 2 की, मतलब दोनों के सिम्टम लगभग एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। मेनली मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग है और सिवियरिटी थोड़ी सी अलग है। तो क्लैड 2 में फर्टेलिटी रेट 1% होता है, क्लैड 1 में 10% होता है। तो अभी क्लैड 1 हमारा सर्कुलेटेड है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कोविड में भी बहुत हुई है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, सबसे पहले तो हम कॉन्टैक्ट डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज एन एनी पर्सन हु हैज़ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोजर विद द प्रोबेबल और कन्फर्म केस, ठीक है। प्रोबेबल केस हो या कन्फर्म केस हो, उसके साथ अगर हमारा कॉन्टैक्ट आ रहा है, कैसा कॉन्टैक्ट आ रहा है, कैसी हिस्ट्री आ रही है, फेस टू फेस एक्सपोजर है, ठीक है, या हेल्थ केयर वर्कर ने विदाउट PPE के उसका एक्सपोजर है, डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है इंक्लूडिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, ठीक है, कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड मटेरियल सच एज क्लोथिंग एंड बेडिंग। आइडेंटिफाई हमने कहाँ कहाँ किस किस स्पेस में करना है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमने 21 डेज़ की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के साथ करना है, ठीक है। हाउस होल्ड लेवल पे करेंगे, वर्क प्लेस पे करेंगे, स्कूल नर्सरी पे करेंगे, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग करेंगे, हेल्थ केयर सेटिंग में करेंगे, हाउस ऑफ वर्शिप, ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ भी हमें गैदरिंग लगती है वहाँ पे हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे। कॉन्टैक्ट की मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, होम क्वारंटीन करेंगे, ठीक है, एंड एक्टिव फॉलोअप। क्वारंटीन क्या है, क्वारंटीन डिजीज़ होने से पहले हम आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है, सिम्टम देखने के लिए कि क्वारंटीन मतलब इंक्यूबेशन पीरियड में है, कॉन्टैक्ट था उसका, क्वारंटीन में डिजीज़ नहीं हुआ, आइसोलेशन में डिजीज़ हो गई, डिजीज़ होने के बाद हम उसको सेपरेट कर रहे हैं।
सेल्फ मॉनिटरिंग फॉर द कॉन्टैक्ट ऑफ प्रोबेबल केस इज रिकमेंडेड। कन्फर्म केस में तो क्वारंटीन कर दो, लेकिन अगर प्रोबेबल केस के साथ है तो उसको कहते हैं भाई सेल्फ मॉनिटरिंग करके रखो अपनी, और 21 डेज तक हमने मॉनिटर करना है साइन एंड सिम्टम के साथ। अगर साइन एंड सिम्टम आ जाते हैं तो उसके बाद हम उसकी लैब इवैल्यूएशन कराएंगे और कंफर्म करेंगे केस को। एसिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट शुड नॉट बी डोनेट ब्लड, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, सीमेन वाइल दे आर अंडर द सर्विलेंस। जो भी सर्विलेंस में है, कॉन्टैक्ट है, एसिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट है या हिस्ट्री है, उसको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। प्री स्कूल चिल्ड्रन में बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डे केयर, नर्सरी एंड अदर ग्रुप सेटिंग। हेल्थ केयर वर्कर who have unprotected exposure to the patient with mpox or possibly contaminated material do not need to be excluded from the work duty। ठीक है, जैसे कोविड में वर्क ड्यूटी हम क्वारंटीन करते थे कोविड में, ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर को भी, लेकिन इन्होंने यहाँ बोला है कि एसिम्टोमेटिक अगर है तो एक्टिव सर्विलेंस में रखेंगे 21 डेज़ के लिए, लेकिन वो अपने वर्क प्लेस पर आता रहेगा। प्रिवेंटिव मेजर में रेजिंग अवेयरनेस, एजुकेट करो पीपल को, ठीक है, एक्सपोजर से प्रिवेंट करना है। कॉन्टैक्ट्स, अवॉइड कॉन्टैक्ट्स विद एनी मटीरियल, बेडिंग, क्लोथिंग, आइसोलेट करना है इन्फेक्टेड पेशेंट्स को। हैंड हाइजीन, प्रैक्टिस गुड हैंड हाइजीन, ठीक है, यूज़ अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, करेक्ट कंटेनमेंट एंड डिस्पोज ऑफ द कंटामिनेटेड वेस्ट मटीरियल। अब आते हैं वैक्सीनेशन पे। 3 वैक्सीन करेंटली लाइसेंस्ड है, ठीक है, मॉडिफाइड वैक्सीना, अंकारा BN, LC16, KMB एंड ऑर्थोपॉक्स वैक्स। हालांकि WHO एडवाइज वैक्सीनेशन फॉर ओनली इंडिविजुअल एट हाई रिस्क ऑफ एक्सपोजर सच एज दोज विद सर्टेन ऑक्यूपेशन और सर्कमस्टेंसेज एंड ट्रैवलर्स हु मेड बी एट रिस्क एट डिटरमाइंड बाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर बेस्ड ऑन द करेंटली असेसमेंट नो रिस्क एंड बेनिफिट मास वैक्सीनेशन। सो रिकमेंड नहीं किया गया है मास वैक्सीनेशन के लिए। नाउ इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिस इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। पेशेंट जो भी सस्पेक्टेड एमपॉक्स इन्फेक्शन वाले हैं उन्हें कॉन्टैक्ट आइसोलेशन रखना है, प्रिकॉशन करना है, ठीक है, और जो कंफर्म्ड केसेस हैं उनको भी आइसोलेट करना है जब तक कि क्रस्टेड ना हो जाए उनके सारे लीजन। हेल्थ केयर वर्कर आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इंक्लूडिंग द मेटिकुलस हैंड हाइजीन, वेयरिंग अप्रोप्रिएट PPE इंक्लूडिंग गाउन्स और ग्लव्स। एनवायरनमेंट क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, जो सब कोविड में होता था, बेसिकली हाई टच सरफेस को हमने डिसइंफेक्ट करना है। वेस्ट मैनेजमेंट इज़ टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद एक्जिस्टिंग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल। एनी विजिटर मस्ट बी केयरफुली इंस्ट्रक्टेड ऑन हैंड हाइजीन एंड प्रॉपर यूज ऑफ PPE टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज़। होम में कैसे करना है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। पेशेंट हु डू नॉट रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन उसको हम होम आइसोलेट करते हैं। तो होम आइसोलेशन की जो क्या करना है हमें, उसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल शुड अवॉइड द क्लोज कॉन्टैक्ट विद इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड। बेसिकली उसने अलग रूम में सेपरेट ही रहना है, तो कॉन्टैक्ट में आना ही नहीं है। आइसोलेशन प्रिकॉशन शुड बी कंटिन्यूड अंटिल ऑल लेजन हैव रिजॉल्व एंड अ फ्रेश लेयर ऑफ स्किन हैज़ फॉर्म्ड। रिस्क असेसमेंट कैसे करनी है। WHO कंडक्टेड अ लेटेस्ट ग्लोबल एमपॉक्स रिस्क असेसमेंट इन अगस्त 2024। तो बेसिकली केसेस के बेसिस पे इन्होंने कहा है कि हाई रिस्क एरिया है या ये मॉडरेट रिस्क एरिया है ना। तो हमारा एरिया जितना भी है ये हमारा मॉडरेट रिस्क में आता है। ये डिफरेंट 22 लेबोरेटरीज़ हैं जो एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं एमपॉक्स टेस्टिंग के लिए। WHO रेस्पॉन्स क्या है। WHO ने जब भी आउटब्रेक हुआ है, it published a strategic preparedness and response plan for mpox and a suite for technical guidance documents. Surveillance, diagnostics, risk communication and community engagement remains the center to stop the outbreak and eliminating human to human transmission of mpox in all countries. These are references and thank you.